So good evening, everybody. In our last class, we have seen trigonometric ratios of sum and difference of two angles, and these formally were in two sets, like sine of a plus b is equal to sine a cos b plus cos a sine b. Sine of a minus b is sine a cos b minus cos a sine b. Cos of a plus b is cos a cos b minus sine a sine b, and cos of a minus b is cos of cos a cos b plus sine a sine. These were formed formally one set, and another set we had was tan a plus b is equal to tan a plus tan b on 1 minus tan a tan b, then tan a minus b is equal to tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b. Here two more formulae for a plus b is equal to for b for a minus 1 upon for b plus for a, and for of a minus b is equal to for b for a plus 1 upon for b minus 4. This is first set, this is second set. We use this formula to evaluate. We use this formula to evaluate trigonometric ratios of those angles which are not we have learned so far in our standard table. We have learned the values of trigonometric ratios of 0, 30, 45, 60, and 90. These values we have learned. But apart from these, there are other submultiples which we often require to work with. For example, if we want to find out sine of, say, 75 degree. So how should we do this? We use sine of, we split this into two parts, 45 plus 30, both in degrees. We split 75 into sine 45 plus 30 degree, and then because we have this formula sine of a plus b, we use this formula to evaluate this. So this is equal to sine 45 cos 30 plus cos 45 sine 30. What is the value of sine 45 degree? 1 by root 2. What is the value of cos 30 degree? Root 3 by 2. What is the value of cos 45 degree? In 1 by root 2. What is the value of sine 30 is 1 by 2. So this is root 3 plus 1 upon 2 root 2. And you simplify this, we get. So we have got the value of sine 75 degree. Similarly, we also know that sine theta is equal to cos 90 minus theta.
This we had learned. So when theta is 75 degree, cos 90 minus 75 gives me what? Cos 15 degree. So this is also equal to cos 15 degree. Okay, we use this formula for okay, we have to find value of sin 15 degree. Then what should we do? Use the difference of this. So we write sin 45 minus 30. We use it like this. We apply formula for a minus, right? ये सॉल्व करो, ये वाला फॉर्मूला आप यूज करो इसके साथ, तो सॉल्व करके बताओ क्या आता है, ये रिजल्ट। हाँ जी, क्या लिखेंगे? जतिन बोलो बेटा, क्या क्या लिखूं यहाँ पे? साइन 45 cos 30 minus cos 45 sin 30. Yes. What is the value of sin 45? sin 45 की क्या वैल्यू यूज होगी? साइन का तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। sin 45 की टेबल में जो वैल्यू आती है वो कौन सी वैल्यू है? आपको टेबल्स लर्न है बेटा या अभी नहीं है? सर अच्छे तरीके से याद नहीं है। हाँ, जो 10th में टेबल लर्न की थी उसकी वैल्यूज याद है, वो पूछ रहा हूँ। वो वैल्यूज लर्न होनी चाहिए क्योंकि वो वैल्यू हमें यूज करके वैल्यूज निकालनी होती है। सर मैं बता रहा हूँ साइन sin 45 की वैल्यू यस 1/√2 होती है, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे यूज करेंगे 1/√2 इंटू cos 30. cos 30 इज हाउ मच? √3/2. अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं, मैंने वैल्यू यहाँ लिखी है, सिर्फ साइन का फर्क आएगा, ठीक है? और ऐसे ध्यान से सुनेंगे तो अभी वैल्यू भी याद हो जाएंगी आप। सिमिलरली cos 45 इज इक्वल टू 1/√2 इंटू sin 30 इज इक्वल टू 1/2. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट √3 minus 1/2√2. And again, sin 15 degree is equal to cosine of 90 minus 15 degree. ठीक है, ये कितना हो जाएगा? cos 75 degree ऐसे हो जाएगा. So if you remember these values, right? तो आप 90 minus theta से उसका जो सप्लीमेंट्री एंगल है, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं. ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन फॉर्मूलों को यूज करते हैं. ठीक है, अब आप tan 75 की वैल्यू निकालिए, cot 75 की वैल्यू निकालिए. ठीक है, आपको शायद वैल्यूज याद नहीं होंगी, मैं भी हेल्प कर देता हूँ इसमें, बट टेबल आपको याद करना है, ध्यान रखना है, टेबल लर्न होना बहुत जरूरी है. और ये अभी याद नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज आगे और याद करने वाली आनी होती. हम प्रोग्रेसिव मोड में, हम रोज कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा हमें ऐड करने की जरूरत है, और ऐड करना बहुत जरूरी है. ठीक है, सो वी राइट tan of 75 as tan of 45 plus 30. This becomes tan of 45 plus tan of 30 upon 1 minus tan 45 tan 30. अभी ये मैं सिंपल लिख रहा हूँ इसको, ये सब डिग्रीज के अंदर है,
क्योंकि आगे जाके ये सब पाई पाई की फॉर्म में आ जाएंगी। ठीक है, tan 45 is 1 and what is tan 30? 1 by root 3. 1 minus again 1 into 1 by root 3. अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा ये root 3 plus 1 upon root 3 minus 1 and tan 75 इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो है 15 डिग्री। तो क्या क्या किस फॉर्म में आ जाएगा cot 15 डिग्री। tan 75 डिग्री इज इक्वल टू cot 15 डिग्री, ये ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे ही में tan 15 डिग्री निकालो तो इसको हम लिखेंगे tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री एंड वी अप्लाई सेम फार्मूला। ठीक है, उसमें यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। इसको करो, सॉल्व करो, इस वाले को निकालो फटाफट। सर ये 1045 है। हाँ 1045। आप देखो ना 15 कैसे आएगा, 45 में से 30 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा, इसलिए 45 और 30 लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे ये थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको भी सोचना है क्या जोड़ा बना सकता हूँ जिसके डिफरेंस की वैल्यूज मुझे पता हो तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। बिल्कुल सेम आएगा, सिर्फ साइन का डिफरेंस आएगा। माइनस है तो ऊपर माइनस आता है, नीचे प्लस आता है। देखो यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ प्लस आ रहा है, तो इस प्रकार से यूज होगा। तो रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 हो जाएगा। अभी यहाँ पे पास दो एंगल हैं ए एंड बी। सो अगर तीन एंगल होते ए प्लस बी प्लस सी ऐसे होता, जैसे ट्राइंगल में तीन एंगल होते हैं ए बी सी, ऐसे होता है ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या करते? तो हम उसके फॉर्मूले बनाते हैं अभी, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसको हम रीराइट करेंगे, ए प्लस बी को इकट्ठा कर लेंगे यहाँ पे, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर लेंगे, ऐसे अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, और फिर इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, दो एंगल वाला। ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी कॉस सी प्लस कॉस ए प्लस बी साइन सी। अब हमारे पास साइन ए प्लस बी का भी फॉर्मूला है, कॉस ए प्लस बी का भी फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूले यहाँ पे लगा देते हैं ये वाले। ठीक है, सो दिस बिकम्स साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी कॉस सी। ठीक है, और ऐसे ही इसको खोल लेते हैं, प्लस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी। ठीक है, अब खोल दो, चार टर्म बन जाएंगे हमारे पास, साइन ए कॉस बी कॉस सी, साइन ए कॉस बी कॉस सी प्लस कॉस ए साइन बी कॉस सी, कॉस ए साइन बी कॉस सी प्लस कॉस ए कॉस बी साइन सी, कॉस ए कॉस बी साइन सी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी। याद रखें सारे एंगल ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी इसी ऑर्डर में आ रहे हैं। चार टर्म में ये स्प्रेड हुआ है, इसी ऑर्डर में एंगल ए बी सी आ रहे हैं। पहली टर्म में साइन ए का है, दोनों बाकी कॉस के हैं। फिर दूसरी टर्म में साइन बी पे चला गया, बाकी दोनों कॉस के हैं। तीसरी टर्म में साइन सी पे चला गया, दोनों कॉस के हैं। और माइनस तीनों साइन के हैं, साइन ए साइन बी साइन सी। तो साइन का फॉर्मूला इस प्रकार से बनकर आता है। ठीक है, ऐसे ही कॉस ए प्लस बी प्लस सी हो तो क्या करेंगे, उसको भी ऐसे ही एक्सपेंड करेंगे, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। जिसको हम लिखेंगे कॉस ऑफ ए प्लस बी को इकट्ठा कर लो,
ठीक है, प्लस सी को अलग कर लो, और अब हमारे पास ये अलग फॉर्मूला, लेट्स अप्लाई दिस। ये हो जाएगा cos a प्लस बी cos c, और प्लस वाले केस में माइनस आता है तो माइनस साइन a प्लस बी साइन सी। खोल दीजिए इसको और फिर खोल देते हैं, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो ब्रैकेट में डाल दो cos c, फिर माइनस, इसको खोल दें, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, और बाहर साइन c। यहाँ भी अब 4 टर्म बनेंगी, कौन कौन सी बनेंगी देखें, cos a cos b cos c। पहले है cos a cos b cos c, फिर माइनस, ये सब माइनस की टर्म बनेंगी। फिर ये तीनों कॉस के पहले आ रहे हैं, अब एक एक कॉस के आएंगे, तो माइनस साइन ए साइन बी cos c माइनस साइन ए cos b साइन c माइनस cos a साइन b साइन c। ठीक है, तो cos a cos b cos c, फिर एक एक cos की टर्म आ रही है, इस प्रकार से ध्यान रखें। तो हम इस प्रकार से इनको एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, ऐसे tan a प्लस b प्लस c अगर तीनों आ रहे हो तो उसको भी हम इसी प्रकार से सिंप्लीफाई करेंगे। तो जहां भी 3 एंगल्स आ रहे हो तो उनको आप इस प्रकार से एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब अगली दूसरी एप्लीकेशन में जाते हैं इसकी हम। ये समझ में आ गया कि अगर 2 से ज्यादा एंगल आ रहे हैं तो कैसे करना है? हाँ बेटा, जतिन, ऋषिका, नितिन। यस सर। हाँ, Yes, sir.